بلاول بھٹو دونوں جائیں گے. میں نواب شاہ کی نشست سے کھڑا ہوں گا اپنی بہن کی جگہ اور بلاول بھٹو لاڑکانہ سے سومرو صاحب کی سیٹ سے کھڑے ہوں گے. احتجاج ہوگا نہ ہڑتال. پیپلز پارٹی نے سیاست کا محور پارلیمنٹ کو بنانے کا فیصلہ کر لیا. آصف علی زرداری کا نواب شاہ اور بلاول کے لاڑکانہ سے ضمنی الیکشن لڑنے کا اعلان. جنگ کرسی کی نہیں بلکہ ملک کے لیے ہوگی. آصف علی زرداری نے پارٹی پالیسی بتا دی. میاں صاحب، ہم نے پارلیمان کو با اختیار اس لیے نہیں بنایا کہ آپ آئیں اور شہزادہ سلیم بن جائیں. آپ نے تو جمہوریت کا خانہ ہی خراب کر دیا. پرانے چیف جسٹس جیسا جج دوبارہ نہیں لگنے دیں گے. آصف علی زرداری کی حکومت کو للکار. تیار ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں تختے جاتی عمرہ کی بادشاہ ختم کرنے کے لیے. نعرے بھٹو. بلاول کی توپوں کا رخ بھی حکومت کی جانب. 4 مطالبات کی منظوری کے لیے ملک گیر دوروں کا اعلان. عوام لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں. والدہ کے قتل کا انتقام لینے کے لیے میدان میں آ رہا ہوں. بلاول بھٹو کا اعلان. کا شکاری زرداری قوت ہے ہماری زرداری قوت ہے ہماری زرداری. ایک سب پہ بھاری زرداری ایک سب پہ بھاری زرداری. بلاول بھٹو کے مختصر سیاسی کریئر کی طویل ترین تقریر. حکومت، عدلیہ اور وزیر داخلہ سب کو نشانہ بنایا. دیکھنا ہے کہ اب سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. فیصلہ ہمارے وزیر اعظم کے کیس جیسا آتا ہے یا ان لاڈلوں کے ساتھ کسی اور طریقے سے پیش آیا جاتا ہے. 9 سال بیت گئے. ملک کی سابق وزیر اعظم کے قتل کیس کی گتھی نہ سلجھ سکی. معاملے میں کس کا ہاتھ ہے؟ سہولت کار کون تھے؟ ہائی پروفائل کیس سے آج تک پردہ نہ اٹھ سکا. بی بی کے قتل کے بعد 5 سال پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی، لیکن قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ایک کمیٹی تک نہیں بنائی گئی. اب قوم سڑکوں اور ڈیڈ لائن کی سیاست کو مسترد کر چکی ہے. اعلانات سے بہتر تھا کہ سندھ حکومت کی کارکردگی پیش کی جاتی. وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب کی آج نیوز سے گفتگو. چیئرمین تحریک انصاف نے بلاول اور آصف زرداری کے پارلیمنٹ آنے کے اعلان کو اچھا قرار دے دیا. پیپلز پارٹی کے پلان کا انتظار ہے جس کے بعد لاہے عمل کا اعلان کریں گے. پلی بارگین کا قانون غلط ہے. حکومت فوری طور پر چیئرمین نیب کو ہٹائے. عمران خان کی گفتگو. تحریک انصاف نے پیناما اسکینڈل پر حکومت مخالف عوامی مہم تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا. خیبر پختونخوا، پنجاب اور وفاقی دارالحکومت کے صدور کو خصوصی اہداف سونپ دیے گئے. ملکی سیاست کا فاسٹ ٹریک پر سفر. وزیر اعظم نواز شریف سے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اور فضل الرحمان کی علیحدہ ملاقاتیں. ملکی سیاسی صورتحال پر صلاح مشورہ. فضل الرحمان چودھری شجاعت حسین سے بھی ملے. لگتا ہے آپ سب سیاست کر رہے ہیں. قانونی نکات سے کسی کو دلچسپی نہیں. عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف ریفرنس میں چیف الیکشن کمشنر کے ریمارکس. سماعت 10 جنوری تک ملتوی. جو لوگ پاکستان میں لوٹ مار کر کے اپنے گھروں میں اطمینان سے بیٹھ گئے ہیں، یہ سب اللہ کی پکڑ میں آئیں گے آہستہ آہستہ. اور ابھی حکومت کے کچھ وزراء نے یہ اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے کہ نیب کے قوانین میں وہ کچھ بہتری انشاءاللہ لائیں گے. کرپشن کر کے اطمینان سے گھروں میں بیٹھنے والے احتساب سے نہیں بچ سکتے. نیب کارکردگی بہتر بنائے. کچھ وزراء نے نیب قوانین میں بہتری لانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے. صدر ممنون حسین کا کوئٹہ میں خطاب. ملکی سلامتی کے لیے پاک فوج اپنا کردار ادا کرتی رہے گی.
फौजी अफसर मुल्की सलामती को दरपेश चैलेंजेस और पेशा वाराना उमूर पर तवज्जो रखें। आर्मी चीफ कमर बाजवा का फौजी अफसरान से खिताब। सुप्रीम कोर्ट का महकमा फूड को पंजाब भर में नाकिस दूध बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुज़र दूध फरोख्त करने वाली निजी कंपनी का लाइसेंस मंसूख कर दिया। डीजी फूड का अदालत में बयान। टोबा टेक सिंह में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद 34 हो गई। अस्पतालों में दर्जनों अफराद जेर इलाज। पुलिस ने मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। तहकीकाती कमेटी भी कायम। शराब लाने वाला थाने में काम करता था, वहीं से शराब लेकर आया, मुतासिरा शख्स का इल्जाम। सिंध में आलूदा पानी की फराहमी पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। सिंध भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है। सूबे को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए, अदालत के रिमार्क्स। कैडेट कॉलेज लाड़काना में मुबैना तशद्दुद से माजूर तालिब इल्म अहमद के बैरून मुल्क इलाज का मामला लटक गया। सिंध हुकूमत ने ऐलान के बावजूद कोई मदद नहीं की। अहमद वालिदा के बगैर अमेरिका नहीं जाना चाहता, वालिद का मौक़िफ़। महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। नवंबर के बिलों में फी यूनिट में 3 रुपए 60 पैसे कमी का फैसला नेपरा ने मंजूरी दे दी। कराची पर इसका इतलाक नहीं होगा। पंजाब में हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद में इजाफा, लेकिन सरकारी अस्पतालों में अद्वियात के स्टॉक में रत्ती भर इजाफा नहीं हुआ। नादार मरीज चक्कर लगा लगा कर थक गए। इनमें असूल कोई नहीं है, वो जो पर्ची वाला वो पकड़ता है, जो अपने होते हैं उनको देते जाते हैं, बाकी लाइन में लगे हुए हैं। अन्य लाइन ला जाती रश, फिर टाइम तक दवाई कोई नहीं मिलती, कहते दवाई खत्म हो गई। लाहौर में निजी रेस्टोरेंट की जेरे तामीर इमारत में गैस सिलेंडर का धमाका। आग लगने से 26 अफराद झुलस गए, 2 की हालत तशवीशनाक। यहूदी बस्तियों के खिलाफ करारदाद क्या मंजूर हुई? इसराइल आलमी ताकतों पर फट पड़ा। अमेरिका के बाद बरतानिया से भी नाराज। नेतन्याहू ने बरतानवी हम मनसब से मुलाकात मंसूख कर दी। फ्रांस ने 15 जनवरी को फलस्तीन अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे पीपल्स पार्टी की नई हिकमत अमली से। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ सड़कों की सियासत करने के बजाय तहरीक का महवर पार्लियामेंट को बनाने का फैसला कर लिया। आसिफ अली जरदारी ने अपने और बेटे बिलावल के ज़िमनी इंतखाब लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। फरहान हलीफ ने वजीर आज़म नवाज शरीफ को सियासी मैदान में भी जंग का खुला चैलेंज दे डाला। ताहम साथ ही ये भी वाजे कर दिया है कि कुर्सी उनके लिए मायने नहीं रखती, वो हुकूमत की मदद के लिए पार्लियामेंट जा रहे हैं। खतरों का खिलाड़ी सरदारी, शेरों का शिकारी सरदारी, शेरों का शिकारी सरदारी, कुव्वत है हमारी सरदारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपनी सियासत की पिटारी से फिर नई तरकीब निकाल ली। न सड़कों पर एहतजाज, न कोई धरना और न ही हुकूमत के खिलाफ कोई हड़ताल। एहतजाजी तहरीक का महाज पार्लियामेंट को बना लिया। न सिर्फ खुद कौमी असम्बली जाने बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासत का भी पार्लियामानी चैप्टर खोलने का ऐलान कर दिया। वो खुशखबरी ये है कि इस इलेक्शन में अभी इस वक्त इस पार्लियामेंट में मैं और बिलावल भुट्टो दोनों जाएंगे। मैं नवाब शाह की नेश से खड़ा होऊंगा अपनी बहन की जगह, और बिलावल भुट्टो लाड़काना से सुमरो साहब की सीट से खड़े होंगे। नौडेरों में बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौके पर खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम नवाज शरीफ पर तनकीद भी खुलकर की। मुफाहमत की पॉलिसी को पसे पुश डालते हुए वजीर आजम पर खूब हमले किए। बोले, मियां साहब, हमने अमानत के तौर पर सियासत सौंपी थी, लेकिन आपने जमहूरियत का खाना खराब कर दिया।
اور پھر سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میاں صاحب آپ نے میری جمہوریت کا کھانا خراب کر دیا ہے. آپ نے ہماری جمہوریت کا کھانا خراب کر دیا ہے. پورے فیصل آباد سے 350 انڈسٹریز بند ہیں اور آپ کے کان پہ جو نہیں رینگتی. آصف زرداری نے خبردار کیا کہ کرسی ہمیشہ نہیں رہتی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے پہلے حکمران کو بھی نکال باہر کیا تھا. نہ آپ کی حکومت رہنی ہے نہ آپ کی ایک کرسی رہنی ہے. ہر چیز کو جو ہے وہ زوال ہے. کہ آپ مت بھولو کہ اس تخت پہ جو پہلے تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. اور یاد کرو کہ اس کو کیسے ہم نے دودھ میں سے مکھی کی طرح اٹھا کے باہر پھینک دیا بغیر لڑے. آصف زرداری نے کہا کہ وہ کالے کوٹوں سے نہیں ڈرتے. ہم پرانے چیف جسٹس جیسا چیف جسٹس نہیں لگنے دیں گے. ایسا نہ ہو کہ جیسا پرانے چیف جسٹس صاحب تھے جو ہمیں روز کبھی کس امینڈمنٹ میں کبھی کس چکر میں اس قسم کا جج آپ لگوا دیں. تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. سابق صدر نے کہا کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو، مرتضی بھٹو، شاہ نواز بھٹو کا نقصان برداشت کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پر بھی ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، لیکن مخالفین کا تو کبھی کوئی جانور بھی زخمی نہیں ہوا. اس پارٹی نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ہم اس افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس مغل بادشاہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اس بات پہ ہمارا یہ اٹل فیصلہ ہے. آصف علی زرداری نے کہا کہ سی ای سی کی اجازت کے بعد الیکشن لڑنے سمیت دیگر حکمت عملی طے کی جائے گی. بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کے خلاف چارج شیٹ پیش کر دی ہے. 4 مطالبات کو عوام تک لے جانے کے لیے ملک بھر میں جلسوں کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ حکومت کی غلط کاریوں پر وہ خاموش نہیں رہ سکتے. ہم سب کی میراث ہے، میراث کا سائی ہے، بلاول پنجاب کا پتر، بلاول سرحد کا سپاہی، بلاول بلوچ کا بھائی، بلاول. خوب پردہ ہے کہ چیلمن سے لگے بیٹھے ہیں. صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. بلاول بھٹو زرداری نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 9ویں برسی کے موقع پر اپنے سیاسی کیریئر کی طویل ترین تقریر کی. پاناما لیکس کے معاملے سے لے کر نندی پور پاور پروجیکٹ کے اسکینڈلز تک حکومت سے جوابات طلب کیے اور کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاملات پر چپ رہے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ چاہتے ہیں کہ مودی کشمیر میں نہتے کشمیریوں کا خون بہائیں اور آپ اس سے دوستیاں کریں اور میں چپ رہوں. نہیں میاں صاحب نہیں، میں چپ نہیں رہوں گا. میں لڑوں گا، میں لڑوں گا، میں لڑوں گا، میں لڑوں گا ملک کی عزت اور وقار کے لیے. بلاول نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ان کی والدہ نے جان کی قربانی دی، لیکن دہشت گردی پر آج بھی قابو نہیں پایا جا سکا. اس ناکامی کا تمام تر ملبہ انہوں نے حکومت پر ڈال دیا. انہوں نے حکومت کے اسکینڈلز کی پوری لسٹ پیش کر دی. سستی روٹی اسکینڈل یا یلو کیب اسکینڈل، دانش اسکول اسکینڈل ہو یا اصغر خان کیس، اسامہ بن لادن سے پیسہ لینا ہو یا مہران بینک اسکینڈل ہو، LNG اسکینڈل ہو یا نندی پور اسکینڈل، حدیبیہ پیپر مل اسکینڈل ہو یا ماڈل ٹاؤن میسیکر ہو. بلاول نے کہا کہ ان کے 4 مطالبات نہیں مانے گئے، لیکن وہ اب چپ نہیں رہیں گے. غاصبوں کا قبضہ اور تختے جاتی عمرہ کی بادشاہت ختم کرنے کے لیے وہ اب بستی بستی اور گاؤں گاؤں کا دورہ کریں گے. میں اپنی 4 ڈیمانڈز منوانے کے لیے پورا پاکستان کا دورہ کروں گا. تو تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں. ہر صوبے میں، شہر شہر، گاؤں گاؤں، بستی بستی غاصبوں کا قبضہ ختم کرنے کے لیے. بلاول بھٹو نے حکومت کے بعد عدالتی نظام کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے عدلیہ کی تاریخ کو خوفناک قرار دیا. جب نواز شریف کی اسمبلی توڑی گئی تو اس کو بحال کر دیا گیا، اور جب نواز شریف نے
जब नवाज शरीफ ने खुद अदालत पर हमला करवाया तो अदालत ने उसको क्लीन चिट दे दी। क्या सुओ मोटो की तलवार सिर्फ हमारे लिए है? जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बिलावल ने कहा कि वजीर दाखिला मुस्तफी होने के बजाय धमकियां दे रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या इन लाडलों के साथ कोई और सलूक होगा। मुझे अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। क्या वही होता है जो हमारे वजीर आजम के साथ हुआ था, या फिर इन लाडलों के लिए और इन लाडलों के साथ कोई और सलूक होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर अपने वालदा के गिर्द घूमती रही। उन्होंने हुकूमत के हर मामले पर तनकीद में अपनी वालदा की सियासी बसीरत का हवाला दिया। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला ने बिलावल और जरदारी के इलेक्शन लड़ने के फैसले की तौसीक कर दी है। इसी बारे में मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे एहसान जुनेजो से। एहसान, इजलास में मजीद क्या अहम फैसले किए गए? पीपल्स पार्टी के मरकजी मजलिस आमला का इजलास जो है वो नोडेरो हाउस में जारी है और इजलास कुछ देर में खत्म होने वाला है। जराये के मुताबिक इजलास में जो है वो शहीद बेनजीर भुट्टो को बरसी के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया गया। उसके साथ बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के ज़िमनी इंतखाब लड़ने के फैसले की भी तौसीक कर दी गई है। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो के लिए NA 204 लाड़काना की निशस्त से MLA अयास उमरो मुस्तफी होंगे, जबकि आसिफ जरदारी के लिए NA 213 नवाब शाह से उनकी हमशीरा अजरा पेचू जो है मुस्तफा होगी। दोनों निशस्तें खाली करने के लिए इस्तीफे जो है वो जल्द इलेक्शन कमीशन को भिजवाए जाएंगे। उसके अलावा हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है वो मुस्तकिल तरीके से चलाने की तजावीज भी पेश की गई है। जी एहसान जुनेजो, बहुत शुक्रिया। इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। और ये ऐलान जिसकी तौसीक की गई है, ये ऐलान किया गया था शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नवी बरसी की मरकजी तकरीब के दौरान, और ये तकरीब आज मुनक्किद की गई थी। मुल्क के तूलो अर्ज से काफिले गड़ी खुदा बख्श पहुंचे थे और बीबी को खराज अकीदत पेश करने के लिए कई नामवर फनकार भी इस तकरीब में शरीक थे। मजीद तफसीलात हमें बताएंगे अली फरकान। किसी भी इस्लामी मुल्क की पहली खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की नवी बरसी की मरकजी तकरीब गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में हुई। लहू की अपने जो रीत है वही तो मौते यजीद है। अपनी कायद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पीपल्स पार्टी के मरकजी कायदीन और जियालों की बड़ी तादाद मुल्क भर से गड़ी खुदा बख्श पहुंची। लोगों ने मोहतरमा की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर बेनजीर भुट्टो के उन्वान से मुशायरे का एहतमाम भी किया गया, जिसमें शोरा ने मरहुमा को खिराज अकीदत पेश किया। उन्हीं अर्थक हयाती जी, पुजानी बेनजीरा ही, दिलेरी जी, शुजात जी, कहानी बेनजीरा ही। बरसी की तकरीब में मशहूर फनकारों ने भी शिरकत की, जिनमें अयूब खोसो और कैसर निजामानी जियालों की तवज्जो का मरकज रहे। और बेनजीर साहिबा की आज है नवी बरसी, तो उस घड़ी को, उस वक्त को भी याद करते हैं जब ये सानिया हुआ। पीपल्स पार्टी का जो लोगों के साथ एक अहद है, एक एहसास पार्टी है, तो मैंने सोचा कि मैं शाना बशाना एक कारकुन की हैसियत से मैं इस पार्टी में आऊं। और बरसी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। नौडेरो शहर, गड़ी खुदाबख्श और लाड़काना में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात रही। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में बेनजीर भुट्टो बम धमाके और फायरिंग के नतीजे में शहीद हो गई थीं। गड़ी खुदाबख्श में किए गए खिताबात पर नून लीग का रद्द अमल भी सामने आ गया। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं बेनजीर भुट्टो की बरसी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। बिलावल भुट्टो अपने 4 मुतालबात मनवाने के लिए पूरे पाकिस्तान का चक्कर न लगाएं, बल्कि वजीर आजम को एक खत लिख दें। बेनजीर के कातलों के हवाले से सवाल इंतहाई मुज़ायका खेज है। पीपल्स पार्टी बताए उसने खुद क्या किया। की बरसी को एक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अगर आप दोनों की तकारीर देखें तो जो मोहतरमा शहीद मोहतरमा थी वो गुम होके रह गई। सियासी तकरीर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुई। और पीपल्स पार्टी के सियासी पावर शो पर मरियम औरंगजेब ने करारा जवाब दिया है। आज न्यूज से बातचीत करते हुए वजीर मुमलिकत का कहना था बिलावल के 4 मुतालबात पार्लिमानी तरीके से हल हो सकते हैं। वो पूरे मुल्क का चक्कर लगाने के बजाय वजीर आजम को खत लिखें और उनसे मुलाकात करें।
चारों मुतालबात पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं और मैं समझती हूँ कि इसके लिए ये पूरे दौरा करने से बेहतर है प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखें और उनसे मुलाकात करें और उन 4 मुतालबात के ऊपर बातचीत और मुज़ाकरात शुरू हो जाएं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मोहतरमा के कातिलों के हवाले से बिलावल भुट्टो का सवाल इंतहाई मज़ाक़ खेज है। अपने दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से क्या किया? कम अज कम एक कमीशन ही बना देते। बीबी की कातिलों के बारे में पूछा, मेरे ख्याल में ये बड़ा ही एक मज़ाक़ खेज सवाल था। 5 साल हुकूमत में बीबी के कातिल की बात भी ना हुई, जिक्र भी ना हुआ, यहाँ तक कि कोई इन्वेस्टिगेशन कमेटी ही बना देते जिसका रिजल्ट आ जाता। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात का कहना था कि सियासी तकारीर सियासी मकासद के लिए की गईं। बेहतर होता ये बताया जाता कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने ऐसा काम किया जिसकी दूसरे सूबों को तकलीद के लिए कहा जाए। उन्होंने मजीद कहा कि बिलावल को अभी मजीद तरबियत की जरूरत है। बात करेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, जिनका कहना है कि पीपल्स पार्टी के प्लान का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद ही लाहे अमल बनाएंगे। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में जारी केस में मुस्लिम लीग नून की शिकस्त की उम्मीद का भी इजहार किया है। आसिफ नवीद की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि हम कह रहे हैं फैसला करें और अकरम शेख कह रहे हैं मजीद तारीख दें। इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून केस हार जाएगी। जमीन लेने में हमने कौन सा कानून तोड़ा है? हलाल की कमाई बाहर से पाकिस्तान लेकर आया, 1983 में फ्लैट लिया, कभी छुपाया कि मेरा फ्लैट नहीं? वज़ीर-ए-आज़म ने मेफेयर्स के फ्लैट छुपाने के लिए झूठ बोला। इमरान खान ने इल्जाम आयद किया कि वफाकी हुकूमत पेशावर शहर की तरक्की के लिए कोशिश करने वाले सूबाई हुकूमत की राह में रोड़े अटका रही है। वफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फेल करना चाहता है। सूबाई दारुल हुकूमत में सड़क का एक अहम मंसूबा वजारत रेलवे की वजह से अल्तवा का शिकार है। 2.5 साल से इजाजत मांग रहे हैं, नहीं मिल रही। कप्तान का कहना था कि मौलाना साहब के बारे में विकी लीक्स ने सही इंकशाफ किया था। फजलुर रहमान को वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश है। प्ली बार्गेन का कानून बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। केपीके में जो एहतसाब बनाया इसमें कोई प्ली बार्गेन नहीं है। इमरान खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के प्लान का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद लाए अमल देंगे। आसिफ नवीद, आज न्यूज, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे टोबा टेक सिंह से, जहां जहरीली शराब अब तक 34 जिंदगियां निगल चुकी है। मुतादिद अफराद को DHQ अस्पताल टोबा टेक सिंह और एलाइड अस्पताल फैसलाबाद में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वजीर आला पंजाब ने इस वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। टोबा टेक सिंह के मोहल्ले मुबारकाबाद में गुज़िश्ता रात उस वक्त कोहराम मच गया जब क्रिसमस की खुशियां मनाने के लिए लाई जाने वाली शराब ने 2 दर्जन अफराद को मौत की वादी में धकेल दिया। जहरीली शराब से मुतासिर दर्जनों अफराद की जान बचाने के लिए कोशिशें जारी हैं। मुतासिर अफराद का कहना है कि क्रिसमस के मौके पर थाने का मुलाजिम शराब लेकर आया था। उसने वो शराब अपने दोस्तों में तकसीम की, जिसको पीने के बाद उनकी हालत गैर हो गई। थाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕੈਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੇਟ ਸਪਰਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਵੀ ਪੀਤੀ, ਆਪ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦਸਤੀ। ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਪਈ, ਸਪੈਟ ਹੋਈ ਆਪ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਗਏ। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने भी वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कैडेट कॉलेज लाड़काना के मुतासिरा 13 साला अहमद के वालिद कहते हैं कि अहमद अपनी वालदा के बगैर इलाज के लिए जाने को तैयार नहीं है। हुकूमत से गुजारिश है कि अहमद की वालदा को भी वीजा जारी किया जाए। कैडेट कॉलेज लाड़काना में तशद्दुद का शिकार अहमद का अमेरिका में इलाज का मामला फिर लटक गया। अहमद और उसके वालिद को वीजा जारी कर दिया गया है, लेकिन अहमद के वालिद का कहना है कि अहमद अपनी वालदा के बगैर अमेरिका नहीं जा सकता, लिहाजा उनकी वालदा का वीजा भी जारी किया जाए। अभी ये बच्चा जिद कर रहा है कि भाई माँ के बगैर मैं नहीं जा सकता, तो इसको किस तरह मैं केयर करूँ, इसकी किस तरह इसको राज़ी करूँ। मेरी हुकूमत से ये इल्तिजा है कि जिस तरह उन्होंने मेहरबानी फरमाई है, इसी तरह हमसे ये भी मेहरबानी फरमाए कि इसकी वालदा का और उसकी छोटी बहन का हमको वीज़ा दिलवा दें। अहमद के वालिद ने अपने बेटे के इलाज से मुतालिक सिंध हुकूमत को गैर संजीदा करार दिया। कहा कि 1 लाख रुपए से जायद अमरीकी वीज़े के लिए अदा कर चुका हूँ, हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने पूछा तक नहीं।
वीज़ा अब हमको मिल गए, वीज़ा के जो भी प्रोसेस के पैसे थे वो भी हमने भरे, पासपोर्ट भी हमने भरे, हर चीज़ हमने की। और इधर जब से बोर्ड हुआ है वो इधर बच्चे को ले गए बोर्ड करवाने के लिए एम्बुलेंस में बिठा के, फिर वापस आके घर छोड़ गए। उसके बाद किसी ने भी हमसे पूछा तक नहीं कि बच्चे के ऊपर क्या गुजर रही है क्या नहीं है। ये रोज़ाना इसको 5 से 7 मरतबा नेपोलाइज किया जाता है। सिंध हुकूमत ने अहमद और उसके वालिद को अमेरिका भिजवाने की जिम्मेदारी उठानी थी। ताहम अब वालिद कहते हैं कि जब तक वालदा को वीज़ा जारी नहीं होगा अहमद को इलाज के लिए अमेरिका नहीं ले जाएंगे। और अब बात करेंगे बॉक्सर मोहम्मद आमिर के अहलिया फरियाल मखदूम की, जिनके वालिदैन बेटी के दिफा के लिए मैदान में आ गए हैं और कहते हैं कि जिस लिबास का झगड़ा है वो फरियाल वेस्टर्न स्टाइल अपनाने के लिए पहनती हैं। लड़ाई ने नींदें उड़ा दी हैं और खदशा ये है कि कहीं बेटी को तलाक ना हो जाए। बॉक्सर आमिर खान की अहलिया और ससुरालियों के दरमियान जारी झगड़े पर फरियाल के वालिद ने भी चुप का रोजा तोड़ दिया। एक इंटरव्यू में बेटी का दिफा किया, उनके ससुरालियों को मशवरे दिया और खदशात का भी इजहार किया। कहने लगे कि बेटी के झगड़े से वो मायूस हैं। वो ये एतराफ़ करते हैं कि फरियाल का पहनावा दुरुस्त नहीं, लेकिन वो बरतानिया के माहौल में एडजस्ट होने के लिए ऐसे मलबूसात इस्तेमाल करती है। साथ ही फरियाल के वालिदैन आमिर खान के वालिद सज्जाद खान के इंटरव्यू से भी खुश नजर ना आए। फरियाल के वालिदैन ने कहा कि सज्जाद खान भी बेटी के बाप हैं और इन्हें पब्लिक में आकर तलाक जैसी बातें नहीं करनी चाहिए। फरियाल मखदूम को बेटी समझें और झगड़ा बढ़ाने के बजाय इसे ख़त्म करें। फरियाल के वालिदैन ने इस खौफ का भी इजहार किया कि कहीं आमिर खान की बेटी को तलाक ना दे दें। खेलों की खबरें शामिल करेंगे आज स्पोर्ट्स में एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज।